and Kashmir के, then they know very well that how these bryophytes they look like. So mostly these bryophytes, they are generally such type of plants which are generally found in cool damp places. ओके बेटे, ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो है हमें ब्रायोफाइट्स हमेशा मिलते हैं. लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, टू टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर देयर. सो हियर I have shown you in this picture. See, these are the fruiting bodies of these bryophytes. ठीक है, these are fruiting bodies. आपको बताया था ना कि the fruiting body जो है ब्रायोफाइट्स की, उसमें आपको एंथ्रिडियोफोर्स, आर्किगोनियोफोर्स नजर आते हैं. See, these are the capsules of the bryophytes. तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आर देयर. शेडेड एनवायरनमेंट में दे जनरली प्रेफर टू ग्रो. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स. ओके, एंड दे आर आल्सो प्लेइंग सम ऑफ द सिग्निफिकेंट रोल in the process of plant succession too. So what is plant succession? It is actually the process of development of different plants on bare rocks or soil that are generally found on the surface of the primitive earth. ठीक है, तो आपको देखो जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था तो what you generally see that there are some of the naked rocks they are lying over the surface of the earth. So first time those plants which appear on these bare rocks, they are actually the bryophytes. ठीक है, along with the lichens. तो उसके बाद देखिए another very important thing is कि अगर हम बात करते हैं liverworts की, तो liverworts because they come under the bryophyte, so they also have some same type of habitats. They are generally found on the stems of the bank in marshy areas in damp soil or some moist bark of the trees. ठीक है, डीप इन द वुड्स का मतलब है कि जंगल में जब आप बहुत डीप चले जाएंगे ना, तब आपको वहां पे मॉइस्चर रिच कंडीशंस नजर आती हैं. एंड देयर यू फाइंड दीज लिवरवर्ट्स. एंड व्हाट अबाउट देयर प्लांट बॉडी? सो लिवरवर्ट्स दे हैव थैलस लाइक बॉडी. ओके बेटे, द कॉमन एग्जांपल ऑफ लिवरवर्ट इज रिक्सिया एंड मार्केंशिया. तो देखो आपको मार्केंशिया कैसा नजर आता है. दिस इज द थैलस ऑफ द मार्केंशिया. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि लिवरवर्ट्स जो है उसमें जो थैलस होता है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है. मींस द डॉर्सल साइड एज वेल एज द वेंट्रल साइड बोथ आर फ्लैट. एंड हाउ दे अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम? सो दे अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ देयर रूट लाइक ऑर्गन्स व्हिच आर नोन एज राइजोइड्स. ओके, एंड आपको ये भी बताया था कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द स्टेम एंड द लीफ. So when you see the thallus of the bryophyte and you find that there are some nodes and internodes present, then you can say that if the nodes are present, internodes are there, so that portion of the thallus is actually the stem-like portion. And in that portion where the veins and veinlets are there, so that green portion of the thallus is known as you can say the leaf-like portion. Okay बेटे, तो यहाँ आपको देखो मार्केंशिया का थैलस नजर आ रहा है. तो मैंने आपको दिखाया है ये उसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपको वेन्स और वेनलेट्स नजर आ रही हैं. एंड फ्रूटिंग बॉडीज आर आल्सो देयर. तो एक्चुअली दिस इज द गैमेटोफिटिक थैलस. तो यू नो दैट द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इट इज डिवाइडेड इनटू टू फेसेस. उसका लाइफ साइकिल जो है उसमें टू फेसेस आते हैं. वन इज द गैमेटोफिटिक फेस एंड अदर इज द स्पोरोफिटिक फेस. So always remember the gametophytic phase is the haploid phase and dominant phase of the life cycle of bryophytes or liverworts. Okay, bete. So in the gametophytic phase, what do you see? You see the thallus of this liverwort, and on this gametophytic thallus, ठीक है, because it is a gametophyte, so it has to be bear the sex organs. तो ये जो thallus like body है ना, उसके ऊपर आपको क्या डेवलप होते हुए नजर आती है? आपको कुछ जो है वर्टिकल ब्रांचेस डेवलप होती हुई नजर आती हैं. तो वन इज एंथ्रिडियोफोर एंड अदर इज आर्किगोनियोफोर. तो आपको बताया था कि एंथ्रिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर आर एक्चुअली दोज वर्टिकल ब्रांचेस which are supposed to bear the male and the female sex organs. So enthridiophore bear the anthridium, okay, which is a disc shape, and archigoniophore is supposed to bear the archigonia, which is umbrella shape. Okay बेटे, तो अम्ब्रेला शेप आर्किगोनिया आपको नजर आएगी एंड डिस्क शेप आपको हमेशा एंथ्रिडियम नजर आएंगे. क्लियर बेटे? इज देयर एनी जसकरण सिंह इन आवर क्लास? यस स्टूडेंट, स्पीक अप. No ma'am. Karan Singh is not there with us, na? I think the student get confused.
Okay बेटे, so antheridium and archegonium they are the sex organs. Always remember कि antheridophore they bear antheridium, male sex organ, and archegoniophore they bear the female sex organ, that is archegonia. और archegonia हमेशा ना flask shape होती है, ठीक। अब देखिए एंथ्रीडियोफोर जो है उसमें अगर एंथ्रीडिया है तो एंथ्रीडिया में मेल गैमेट्स बनेंगे, एंड यू आल्सो नो द नेम ऑफ द मेल गैमेट्स, दे आर द एंथ्रोजोइड। और अगर आर्कीगोनियम की हम बात करते हैं तो आर्कीगोनियम जो है उसमें हमेशा फीमेल गैमेट्स बनेंगे, एंड फीमेल गैमेट हियर इज द एग सेल। तो एग सेल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ओके बेटे, आप कुछ भी नहीं है आगे। जो एंथ्रोजोइड्स हैं दे कम्स आउट फ्रॉम द एंथ्रीडियम व्हेन द दिस एयर ब्लो, तो उसके बाद दे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर करंट्स, जो कि हमेशा ब्रायोफाइट्स जो है वो रिवर बैंक या डैम प्लेसेस पे होते हैं। So these anthrozoids they fall on the water current, they swim in the water current and reaches that thallus which contains the archegonia। ठीक, तो यहाँ पे ये archegonia जो है इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, anthrozoid के fuses with the egg cell and when they fuse with the egg cell they form the zygote। तो ये zygote बनाएंगे। पर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो zygote है उसके अंदर meiosis बिल्कुल नहीं होगा, and this zygote they later has to be develop into a multicellular sporophyte। ठीक है, ये मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, और ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफिटिक थैलस के साथ ही अटैच रहेगा। ठीक बेटे, तो गैमेटोफिटिक थैलस के साथ ये अटैच रहता है। जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जो बॉटम में इसको अटैच करता है दैट इज नोन एज फुट, और देयर इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम द फुट, इट इज नोन एज सीटा, and at the top of this seta a swollen capsule like structure is there which is known as capsule। तो zygote का न्यूक्लियस कैप्सूल में चला जाता है, and now meiosis takes place inside the zygote nucleus which is present in the capsule, and as a result haploid spores are formed। ठीक बेटे, हैप्लॉइड स्पोर्स जो है फॉर्म हो जाएंगे। जैसे ही ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है दे कम्स आउट, तो ये क्या करेंगे, ये बाहर आके जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद ये फिर से ब्रायोफाइट का थैलस बनाएंगे। और आपको पता है कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी जो है उसमें डोमिनेंट फेस जो है वो गैमेटोफिटिक फेस है। तो इस तरह से लीवर वॉर्ड जो है उसके अंदर हमें फिर से एक गैमेटोफाइट जो है वो नजर आएगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए थैलस। ओके बेटे, सो हियर आई हैव रिटन द थिंग्स। एंड रिगार्डिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको बताया था कि ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे बियर स्पेशल cup-like structures which are known as gamma cup, and inside this gamma cup asexual buds are present which are known as gamete। So when the wind blow, these gametes they comes out from the cup-like structure gamma cups and they start germinating on the substratum if favorable conditions are there, and it form the thallus of the liverwort again। And you know that the thallus, the dominant phase of the liverwort is the gametophytic thallus only। ओके बेटे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मॉसिस की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ना ब्रायोफाइट जो है उसका स्पोरोफाइट दिखाया हुआ है। तो दिस लीफ bunch of leaves they actually represent the gametophytic thallus, and see there is one structure, it emerges out from these leaves, and topmost portion is known as a capsule and the stalk like portion is known as a seta, and where this seta is attached with these leaves, it is actually the foot portion of the sporophyte। तो always remember कि ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक फेस डोमिनेट होता है, एंड स्पोरोफिटिक फेस जो है वो कुछ टाइम के लिए ही नजर आता है। कैप्सूल में जाइगोट न्यूक्लियस होगा, मियोसिस होगी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स दे कम आउट, फॉल ऑन द सबस्ट्रेटम, जर्मिनेट, और फिर से ये गैमेटोफाइट जो है उसको बना देंगे। ओके बेटे, अब मॉसिस पे चलिए। तो मॉसिस जो है they are little bit differentiated from the liverworts, but here there are two special stages that we generally see in the life cycle of the mosses। ओके बेटे, तो मॉसिस जो इनके लाइफ साइकिल में टू स्टेजेस आ जाती हैं। वन इज नोन एज द प्रोटोनिमा स्टेज विच इज द फर्स्ट स्टेज। और आपको बताया था कि गैमेटोफाइट जो है वो चाहे लिवरवॉट है चाहे मॉसिस है, गैमेटोफाइट किससे डेवलप होता है, हैप्लॉइड स्पोर से डेवलप होता है which comes from the capsule, जो कैप्सूल में से आता है। तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं कि when the haploid spore they germinate, then they form the first stage of the moss thallus which is known as the protonema stage। ठीक बेटे, प्राइमरी प्रोटोनिमा भी इसको हम कहते हैं या प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं।
तो how the moss it look like it in its first stage which is the protonema stage. तो इमेजिन करिए कि इसके अंदर जो मॉस होता है वो ग्रीन कलर का नजर आता है आपको. क्रीपिंग स्ट्रक्चर, क्रीपिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है, क्रीपिंग शब्द का मतलब है रेंगना. ठीक है बेटे. तो सॉइल की जो सरफेस होती है ना उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रो करता है. आपको ऐसे लगेगा जैसे मॉस जो है वो सॉइल सरफेस के ऊपर जो है वो लेटा हुआ है. ठीक. तो क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, ग्रीन स्ट्रक्चर है और उसमें काफी सारी ब्रांचेस भी होती हैं. ठीक है. फिलामेंट्स की फॉर्म में आपको नजर आता है. तो इमेजिन करिए कि सारा जो प्रोटोनिमा स्टेज में मॉस है वो सॉइल सरफेस के हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं. बट व्हाट हैपन इन द सेकंड स्टेज व्हिच इज नोन एज द लीफी स्टेज. ठीक है. तो ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है उसी से फिर आगे जाके क्या डेवलप होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप होता है. कैसे डेवलप होता है वो सुनिएगा. तो प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है उसमें जो ब्रांचेस प्रेजेंट है ना उनकी लेटरल पोजीशन पर. ठीक है बेटे. तो प्राइमरी प्रोटोनिमा की जो ब्रांचेस है उसकी लेटरल पोजीशन पे सम बड्स डेवलप्स व्हिच आर नोन एज लेटरल बड्स. और इन लेटरल बड्स में से देयर इज अ फर्दर न्यू ब्रांचेस अराइजेस. ठीक है. इन लेटरल बड्स में से फिर नई ब्रांचेस निकलती हैं. बट व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस न्यू ब्रांचेस, ये न्यू ब्रांचेस ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. जबकि प्राइमरी प्रोटोनिमा जो था वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था सॉइल में. तो फिर उसी की जो ब्रांचेस थी उसमें लेटरल बड लगी और लेटरल बड जो है उसमें से ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकली एंड these branches they later bear bunch of leaves. तो this stage is known as the leafy stage. अब इमेजिन करिए कि एक जो है नीचे की तरफ प्राइमरी प्रोटोनिमा है जिसकी सारी की सारी जो ब्रांच्ड प्लांट है वो क्रीपिंग फॉर्म में सॉइल सरफेस पे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है और उसी में से कुछ ब्रांचेस अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं जो लीफी स्टेज को यहाँ पे डेजिग्नेट करती हैं. तो आप सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे वर्टिकल ब्रांचेस के बारे में या लीफी स्टेज के बारे में. सो ये जो लीफी ब्रांचेस हैं उसके टिप्स हैं. ठीक है बेटे. उसके टिप्स पे क्या लगेंगे, सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे. एंड यू नो द नेम ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स. So that branch which bears the antheridium, which is the male sex organ, it is known as antheridophore. And that branch which bears the female sex organ, it is known as archegoniophore. ठीक. तो उस ब्रांच पे antheridium लगेंगे और एक पे archegonia लगेंगे. And inside the antheridium, male gametes are going to develop, which are known as anthrozoid. And inside the female sex organ, archegonia egg cell is present. Now what happened? The wind blows. And the anthrozoid they comes out from the antheridium, they enters into the next branch where the archegonia is present. Inside the archegonia they enter. Okay, passes through the neck of the archegonia, then reaches the bottom where the egg cell is, where fuses with the egg cell and forms zygote. बाकी सारी स्टोरी लिवरवॉट वाली ही है. Now the zygote is not going to develop into आप कह सकते हो कि zygote में meiosis नहीं होगा और जाइगोट जो है वो इटसेल्फ क्योंकि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो ये मॉडिफाई होकर इट फॉर्म द न्यू स्पोरोफाइट. एंड दिस स्पोरोफाइट अगेन हैज टू थ्री थिंग्स, फुट, सीडा एंड कैप्सूल. सो बाय फुट दे अटैच्ड विद दिस प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज. ओके. एंड उसके बाद वो कहते हैं कि सीडा इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देयर एंड इनसाइड द कैप्सूल द जाइगोट न्यूक्लियस इट फाइनली you can say reside itself. And later on what happen in the zygote nucleus, meiosis takes place and as a result haploid spores are formed. So again when the wind blows then these haploid spores they fall on moisture rich substratum, they germinate. ये germinate हो जाएंगे और germinate होके फिर से moss का thallus बनाएंगे. तो आपको याद है कि moss के thallus जो है इसमें पहली stage primary protonema stage है and second stage जो है वो leafy stage है जो तब डेवलप होती है जब प्राइमरी प्रोटोनिमा की जो क्रीपिंग ब्रांचेस हैं उसकी लेटरल एक्सिस पे बड्स लगती हैं तो उसमें से न्यू ब्रांचेस वर्टिकल फैशन में ग्रो होती हैं और वो लीव्स को बियर कर लेती हैं जिसे हम लीफी स्टेज कहते हैं. और लीफी स्टेज जो है वही सेक्स ऑर्गन्स को बियर करती है. ओके बेटे. तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसेस. एग्जांपल यहाँ पे आपको उसने बताए हुए हैं कि मॉसेस के एग्जांपल्स में वी हैव फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगना. ठीक है. 3 टाइप ऑफ मॉसेस आर देयर. और अगर हमने लिवरवॉट के एग्जांपल दे दिया तो वी हैव रिक्सिया एज वेल एज मार्गेंशिया. ओके बेटे.
So now Harleen and Shreya, this is clear to both of you, बेटे? Yes, ma'am, clear. तो आज इसको Ma'am, yes, दोबारा clear. पढ़ेंगे या फिर देखेंगे कि आपको क्लियर हो गया है. अगर स्टिल डाउट है तो we will repeat it again. Okay. So now I am proceeding with the advanced type of plants. So I have discussed with you these bryophytes, liverwort, mosses, all of them. Okay, बेटे टेरिडोफाइट्स we have done very easy. बस दोनों में इतना डिफरेंस है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट जो फेस होता है वो गेमेटोफिटिक फेस होता है और टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेस है उनके लाइफ साइकिल का वो स्पोरोफिटिक फेस है जिसमें आपको टू रूट स्टेम एंड लीव्स नजर आते हैं. ठीक है, अब मैं आपको आज जिम्नोस्पर्म बताने जा रही हूँ. तो यू हैव सीन दीस प्लांट्स सो मेनी टाइम्स. इट इज आल्सो ग्रोइंग इन आवर स्कूल कैंपस टू. ठीक है, दो स्टूडेंट्स हु हैव विजिट स्कूल उनको पता है कि देयर आर सम बिगर रेड कलर ड्रम्स वी यूजुअली प्लेस्ड नियर द साइकिल स्टैंड. जहाँ पे हमारा साइकिल स्टैंड है ना वहाँ पे रेड कलर के बड़े बड़े ड्रम्स रखे गए हैं, उनमें ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. तो जनरली टू टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो हमें जनरली नजर आते रहते हैं, वन इज साइकस एंड अनदर इज स्पाइनस. ठीक है बेटे, साइकस इस तरह का होता है. साइकस जो है उसमें बंच ऑफ ब्रांचेस जो है वो सिंगल पॉइंट से ही अराइज होती हैं. और यहाँ पे जो हमारा पाइनस होता है जिसे हम पाइन ट्री भी कहते हैं. ठीक है, इस तरह के कोन्स आपने अक्सर देखे हुए हैं, घर में हम डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं. तो पाइनस और पाइन ट्री जो है मोस्टली वेयर यू हैव सीन दीस प्लांट्स, तो व्हेन यू विजिट द हिल स्टेशंस. ठीक है, जैसे हिमाचल में आप धर्मशाला जाते हो या फिर आप यूपी के अंदर जो है देहरादून मसूरी जाते हैं, तो आप जब एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहे होते हैं देन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स दे आर जनरली ग्रोइंग साइकस एंड पाइनस. तो ये प्लांट्स जो होते हैं इनके लीव्स नीडल शेप होते हैं स्टूडेंट्स. व्हाई दे बियर नीडल शेप लीव दैट यू आल्सो नो, बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन एल्टीट्यूड जोन्स. So though there is enough rainfall in such areas, but because of slopes, the rainwater it generally run off. ठीक है, बारिश का पानी ठहरता नहीं है, माउंटेन्स में नीचे चला जाता है प्लेन्स में. तो इसलिए वाटर डेफिशिएंसी यहाँ पे हमेशा बनी रहती है. बिकॉज ऑफ दिस देयर लीव्स आर द नीडल शेप लीव्स. So first I am going to discuss with you the general features of these gymnosperms. So gymnosperms are the plants in which ovules are not covered by any of the ovary wall. ठीक है बेटे, you have learned about the process of double fertilization in class 10th in angiosperms. तो उसमें आपको बताया गया था कि when fertilization takes place, तो after fertilization जो ओव्यूल होता है वो हमेशा सीड बन जाता है और जो ओवरी होती है वो हमेशा फ्रूट बनती है. तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ओव्यूल्स जो होती हैं they are not enclosed inside any of the ovary wall. मतलब इसके जो सीड्स हैं या ओव्यूल्स हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं, नेकेड होती हैं. ठीक है बेटे, उनके आसपास फ्रूट की कोई कवरिंग नहीं होती. तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी और उसके बाद भी they have exposed type of leaves. देखो, the seeds that develop post fertilization they are not covered, they are the naked type of seeds. And gymnosperms they include mostly such type of trees which have medium size height. ठीक है, ऐसे ट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं जिनकी की मीडियम साइज वाली हाइट होती है, या फिर दे हैव टॉल ट्रीज, बहुत टॉल ट्रीज भी आ जाती हैं इसके अंदर. सो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्री जो है जिसको हम सिकोया कहते हैं, ठीक है, इट इज आल्सो रिटन इन योर बुक. सिकोया इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड. वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आता है. इसके अलावा सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स दे आर श्रब्स आल्सो. ठीक है, कुछ जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो श्रब्स भी होते हैं. तो यहाँ पे देखिए सिकोया का अनदर नेम जो है जाइंट रेडवुड ट्री कहते हैं इसको. इफ यू हैव लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस इन जीके बुक, देन जाइंट रेडवुड ट्री इज द टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज सिकोया. ओके, एंड रिगार्डिंग देयर रूट्स, तो कहते हैं कि रूट्स जो है इनकी किस तरह की होती है बेटे. तो रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू सो मेनी टाइम्स. अ टैप रूट सिस्टम इज सच अ root system in which there is a main root which is known as primary root, and so many other small roots they arises from the primary roots, and this may be secondary roots, और secondary roots में से भी further roots arise होती है जिन्हें tertiary roots कहते हैं. ठीक है, तो टैप रूट में हमेशा एक मेन रूट होती है जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं और उसमें से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स अराइज होती हैं. तो रूट्स की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इन द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स द फंगस दे जनरली ग्रो. इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें फंगस जो है वो ग्रो करती हैं.
and here the fungal species, they lives along with the roots of these plants. So it is a kind of a symbiotic association. ठीक है, ये symbiotic association है कि फंगस जो है वो प्लांट जो है इसको बेनिफिट पहुंचाती है and the plant is also benefited the fungus too. So vice versa relationship is there. So this kind of symbiotic association is known as mycorrhiza. ठीक है, तो पाइनस ट्री जो पाइन ट्री है ना उसमें माइकोरिजल एसोसिएशन ग्रो आपको नजर आती है. तो व्हाट इज माइकोरिजा? इट इज अ symbiotic association of the fungus with the roots of the higher plants. ठीक है, एंड साइकस जो है उसमें स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रूट्स आर देयर in case of cycas and they are known as the coralloid roots. ठीक है, coralloid roots की खास बात ये है कि inside the coralloid roots nitrogen fixing cyanobacteria they are generally formed. तो coralloid roots जो है इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन जो है उसका फिक्सेशन करते हैं. और वहां पे पाइनस के केस में माइकोरिजा होते हैं. फंगल फिलामेंट्स जो है वो रूट्स को कवर करके रखती हैं एंड दिस फंजाई it keeps the root moist and it also protects the plant from any kind of fungal infection, any kind of you can say pathogens. ठीक है, और जो फंगस है वो हेटेरोट्रॉफ होती है तो इसीलिए उसको प्लांट से जो है फूड मिल जाता है. तो यहाँ पे देखो मैंने 2 पिक्चर्स आपको शो की है. फर्स्ट पिक्चर पाइनस की है जिसमें आपको कोन्स नजर आ रही हैं. सेकंड पिक्चर जो है वो साइकस की है. पाइनस में ब्रांचेस होती हैं, साइकस में ब्रांचेस नहीं होती. स्टेम के ही कई सारे पार्ट होके उस पे लीव्स आ जाती है. ओके स्टूडेंट, तो लीव्स की अगर हम बात करें तो उससे पहले देखो उसने स्टेम के बारे में बताया. तो स्टेम इसमें अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं जैसे साइकस में, और स्टेम की फर्दर ब्रांचेस भी हो सकती हैं फॉर एग्जांपल इन पाइनस एंड इन सिट्रस. देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देयर लीव्स, तो लीव्स में भी सिंपल लीव और दे में भी कंपाउंड लीव. ठीक है, सिंपल लीव्स वो लीव्स होते हैं जिनके अंदर वो कहता है कि जो लैमिना होता है लीव का, ठीक है, लैमिना जो है उसकी जो मार्जिन्स है वो उसके मिडरिप जो है लीफ की उसको टच नहीं करती है. ठीक है, इफ द लैमिना ऑफ द लीफ इज एंटायर and the incisions of the lamina means the margins of the lamina they do not touch the midrib. midrib समझते हैं ना क्या होता है? लीफ के अंदर जो सबसे प्रोमिनिएंट वेन होती है उसको मिडरिब कहते हैं. तो अगर कहते हैं कि लैमिना जो है उसके मार्जिन्स जो है उसके काफी सारे जो है पोर्शंस हो भी गए हैं तो वो पोर्शंस अगर मिडरिब को टच नहीं करते then such type of leaf is known as simple leaf. और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है? तो कंपाउंड लीव्स आर दोस लीव्स where the lamina is divided into so many partitions and all the partitions they touch the midrib. So आपको ऐसा लगेगा कंपाउंड लीफ में कि सेंटर में मिडरिब प्रेजेंट है और उसके ऊपर कई सारी छोटी छोटी लीफलेट्स हैं. तो अगर आपने नीम ट्री देखा हुआ है तो उसके लीव्स कंपाउंड लीव्स होते हैं, और अगर आपने पीपल ट्री देखा है तो उसके लीव्स सिंपल लीव होते हैं. ओके बेटे, तो साइकस के अंदर द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स. साइकस जो है उसके अंदर लीव्स जो है वो कुछ सालों के लिए बने रहते हैं. पिन्नेट लीव्स कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा कि कंपाउंड लीव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दे मे बी पिन्नेट और पाल्मेट. ठीक बेटे, ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे तो आई विल गोइंग टू टेल यू इन डिटेल अबाउट पिन्नेट एंड पाल्मेट. फिलहाल आप याद रखेंगे कि पिन्नेट कंपाउंड लीव्स आर दोस लीव्स वेयर द लैमिना it is divided into so many smaller leaflets and each of the leaflet touch the midrib. Okay, then leaves in the gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. As I have already explained you that these plants they generally grow in the altitude zone. ये हमेशा टेम्परेचर कहाँ पे ग्रो करते हैं? माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं. तो आपको पता है कि अगर हम एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो सन इज वेरी नियर टू अस. So these plants they are adapted to such type of conditions where they are able to face the high temperature conditions. Okay, and another very important thing is humid environment they generally grow. ठीक है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको पता है कि टेम्परेचर इज मोर तो रेनफॉल भी होगी, और अगर रेनफॉल होगी तो ह्यूमिडिटी जो है वो बनी रहेगी और फास्ट विंड जो है जहां ब्लो करती है वहां पर होती है. ठीक है, उसके बाद देखिए इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स आर देयर. तो व्हाई द नीडल लाइक लीव्स आर देयर? बिकॉज़ इफ द लीव्स आर द नीडल शेप एंड देयर लैमिना इज वेरी शॉर्ट, तो दिस मींस द सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड. सरफेस एरिया लीफ का रिड्यूस हो जाएगा. और दूसरी चीज है वाटर लॉस नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आल्सो पोजेस अ थिक क्यूटिकल. इसमें थिक क्यूटिकल भी होता है. इट इज अ कवरिंग
दैट इज यू कैन से एपिडर्मिस होती है ना लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहती है। एंड ये क्यूटिकल इसलिए प्रेजेंट है सो दैट द एक्स्ट्रा वाटर कैन नॉट बी लॉस्ट फ्रॉम द लीफ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। बिकॉज इफ देयर इज हाई टेम्परेचर और सनलाइट तो लीफ जो है उसपे से ट्रांसपिरेशन भी जल्दी जल्दी होता, इसीलिए इनके जो लीव्स है ना वो कैसे हैं, इनके लीव्स जो हैं वो इस तरह की है जिसके अंदर की लैमिना बहुत ही कम है, सरफेस एरिया बहुत कम है, एंड दूसरा थिक वैक्सी कोटिंग इज देयर व्हिच इज नोन एज क्यूटिकल। एंड अनदर थिंग इज सक्कन स्टोमेटा। सक्कन स्टोमेटा मींस देयर स्टोमेटास दे आर डीपली embedded inside the leaf surface। इनके जो स्टोमेटास हैं वो लीफ सरफेस में बहुत अंदर तक होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि if they present on the surface of the leaf then this means there is lot of water loss from the these stomatas। अगर वो डीपली embedded होंगे तो वाटर लॉस उसमें से कम होगा। ओके बेटे। अनदर थिंग इज द जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर हेटेरोस्पोरस। ओके बेटे, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सो मेनी टाइम। हेटेरोस्पोरस मींस such a type of plants which always produced two type of spores। ऐसे प्लांट जो हमेशा दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं they are known as heterosporous। तो जिम्नोस्पर्म्स भी हेटेरोस्पोरस हैं and they produce two type of spores, one is microspore and another is megaspore। एक माइक्रोस्पोर होती हैं और एक मेगास्पोर्स होते हैं, ठीक है। so two kind of spores they are produced inside the sporangia। दोनों ही स्पोर्स जो हैं चाहे माइक्रोस्पोर है मेगास्पोर है वो जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको स्पोरेंजिया कहती हैं। और ये जो स्पोरेंजिया है, ठीक है बेटे, ये स्पोरेंजिया जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ कोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो और ये जो कोन है वो कहाँ पे जाके अटैच होते हैं, तो कहते हैं कि देयर आर some leaves that are present on the branches which are known as sporophylls। और ये जो स्पोरोफिल्स है ना इनके ऊपर कोन्स लगते हैं, कॉम्पैक्ट कोन्स, और उन कोन्स के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक बेटे, तो अगर मैं कह रही हूँ कि वो हेटेरोस्पोरस है इसका मतलब कि यहाँ पे जो लीव्स होंगे, ठीक है, तो उसमें से कुछ लीव्स जो है वो स्मॉल साइज के होंगे एंड सम ऑफ द लीव्स मे बी ऑफ द लार्जर साइज। तो दोस ब्रांचेस which bear small size leaves they are known as, ठीक है, ऐसी ब्रांचेस जिसमें स्मॉल साइज लीव्स हैं और उन स्मॉल साइज लीव्स को क्या बोला गया है, माइक्रोस्पोरोफिल्स बोला गया है। एंड देयर आर सम ऑफ द ब्रांचेस व्हिच हैव लार्ज साइज लीव्स, तो उन लार्ज साइज लीव्स को क्या बोला गया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ दूसरे जो हैं वो मेगास्पोरेंजिया। ओके बेटे, तो ये इमेजिन करिए कि आपको एक ट्री नजर आ रहा है, उसके अंदर लीव्स, रूट्स एंड स्टेम अच्छे से डेवलप है। ओके, और जो लीव्स हैं उनको क्या नेम दिया गया है, स्पोरोफिल। ठीक है, तो कुछ लीव्स जो हैं दे आर ऑफ द स्मॉलर साइज तो दे आर नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल एंड अदर लीव्स दे आर ऑफ द लार्जर साइज तो दे आर नोन एज मेगास्पोरोफिल। तो हमेशा याद रखिए कि माइक्रोस्पोरोफिल यानी स्मॉल साइज लीव्स जो हैं which are present at the tip of the branches they fold to form compact structures और cones। उसी तरह से लार्जर लीव्स जो हैं वो भी जो टिप ऑफ द ब्रांचेस पे प्रेजेंट है फोल्ड होके फीमेल कोन्स जो है उनको फॉर्म करेंगे या फीमेल स्टोबुलाई को फॉर्म करेंगे। तो व्हेन यू सी इनसाइड द मेल कोन, जब आप मेल स्टोबुलाई या मेल कोन के अंदर देखेंगे तो व्हाट यू सी, स्पोरेंजिया इज देयर एंड स्पोरेंजिया के अंदर आपको स्पोर मदर सेल नजर आएंगे। So if I am talking about the male stobuli or the male cone, then you know that inside the male cone microsporangia is there, and inside the microsporangia the microspore mother cells are there, and microspore mother cells when they undergoes meiosis they form microspores। Okay बेटे, तो अगर मैं मेगास्पोरेंजिया की बात कर रही हूँ तो मेगास्पोरेंजिया कहाँ पर होंगे, ऐसे ब्रांचेस जिन्होंने फीमेल कोन बियर किए हैं। तो फीमेल कोन जो है इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया होंगे, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल्स एंड व्हेन दिस मेगास्पोर मदर सेल्स दे अंडरगोस मेयोसिस दे फॉर्म मेगास्पोर। ओके, अब मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगी सबसे पहले मेल ब्रांच के बारे में। ठीक बेटे, तो मेल ब्रांच जो है वो ब्रांच है व्हिच हैज अ स्मॉल साइज लीव्स एंड द स्मॉल साइज लीव्स आर नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल एंड दिस माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोफिल या स्मॉल साइज लीव्स जो कि ब्रांच के एंड में प्रेजेंट होते हैं ना वो फोल्ड होके कोन्स बना लेते हैं व्हिच आर नोन एज द मेल स्टोबुलाई।
Now what is present inside the male strobili? So inside the male strobili, the microsporangia is there. Microsporangia is a structure which is present inside the male strobili or pole. और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी. ठीक बेटे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स भी टेरिडोफाइट की तरह स्पोरोफिटिक उनका जो लाइफ फेस है, उनके लाइफ साइकिल का वो डोमिनेट होता है. तो याद रखिए, मैंने आपको बोला है कि मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस. मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. और ये जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे ना, ये काफी ज्यादा होंगे नंबर में. ठीक बेटे, तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेंगे. पर वो कहते हैं कि दिस माइक्रोस्पोर्स दे आर नॉट फुली डेवलप्ड. ये माइक्रोस्पोर अच्छे से डेवलप नहीं हो रखे होते, और ये रिड्यूस्ड टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो मेल गैमेटोफाइट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है ना, इसी को हम क्या मान लेते हैं? पोलन ग्रेन. We call it as pollen grain. So what is a pollen grain? It is a reduced type of male gametophyte which is actually the microspore. Reduced microspores. ठीक बेटे, तो यहाँ पे रुक जाएंगे आप कि जो मेल ब्रांच थी उसमें मेल कोन्स लगे. मेल कोन्स में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस, मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर्स. But these microspores they are not fully developed. So these reduced microspores they represent the male gametophyte and they are also known as pollen grains. अब याद रखिए कि pollen grains जो हैं वो किसके अंदर फॉर्म हो गए हैं? मेल कोन के अंदर फॉर्म हो गए हैं. अब चलिए फीमेल ब्रांच की तरफ. तो कहते हैं कि जो फीमेल ब्रांच है उसमें बड़े-बड़े साइज के लीव्स प्रेजेंट हैं and these leaves are known as the megasporophyll. Okay students, so these megasporophylls, okay, large size leaves when they are present at the end of the branch, so they fold and they also form pole. तो फीमेल कोन्स या फीमेल स्टोबुलाई जो हैं वो हर एक बड़े साइज वाले लीव्स वाले ब्रांच के एंड पे लगे हुए होते हैं. And what is present inside the female stobuli? So you know that inside the female stobuli megasporangia is there. And inside the megasporangia what is present? Megaspore mother cell. And this megaspore mother cell it undergoes meiosis. ये megaspore mother cell जो है उसके अंदर meiosis होती है, और meiosis होने के बाद ये 4 megaspores बनाते हैं. ठीक बेटे, दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि मेल के केस में माइक्रोस्पोर काफी सारे बने थे, बट इन केस ऑफ फीमेल when the megaspore mother cell they undergoes meiosis they form 4 megaspores. और याद रखिए आउट ऑफ these 4 megaspore 3 degenerate. ठीक है, 3 इसमें से डीजेनरेट हो जाती हैं एंड ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स अलाइव. और सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो अलाइव रहता है. और इस तरह से वो कहते हैं कि ये जो मेगास्पोर है, ठीक है, ये मेगास्पोर जो है ये फिर आगे जाके किसमें डेवलप हो जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट. तो दिस मेगास्पोर इट लेटर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट. तो अब आपको मैंने ये बताया कि मेल के केस में जो माइक्रोस्पोर थे जिन्हें हमने रिड्यूस्ड माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन्स कहा था, वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते थे ना. तो यहाँ पे जो 4 हमारे पास जो है मेगास्पोर बने हैं, जिसमें से आउट ऑफ दिस 3 डीजेनरेट एंड 1 सर्वाइव ओनली. सो दिस सर्वाइविंग मेगास्पोर इट डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा. और इस फीमेल गैमेटोफाइट में सबसे अच्छी बात है कि इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? 2 to more आर्किगोनिया आती है. ठीक है, तो आर्किगोनिया आपने ब्रायोफाइट में भी सुनी है, आपने एल्गीज के केस में भी. ठीक है बेटे, एल्गीज में तो नहीं कह सकते, ब्रायोफाइट्स में आपने देखी है, टेरिडोफाइट्स में देखी. तो ये जो सर्वाइविंग मेगास्पोर होता है जो फिर फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, वो 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया रखता है. ओके, एंड ये आर्किगोनिया जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. तो सारे के सारी चीजें किसके अंदर हो रही हैं? फीमेल कोन के अंदर हो रही है. ओके बेटे, अब दोनों को साथ लेके चलो. जो मेल गैमेटोफाइट था वो पोलन ग्रेन्स थे, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं? माइक्रो मेगास्पोर है, और उसके अंदर 2 से 3 तक जो है आर्किगोनिया. अब विंड ब्लो करेगी. नाउ द विंड ब्लोस
and the pollen grains they comes out from the male cone, और pollen grains male cone में से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। they you can say they move in the wind के अंदर move करेंगे and accidentally they fall on that